panel discussion for you. And we are going to talk about the sheet metal industry. And we have an industry leader with us to talk about the subject. Before I introduce you to him, let me give you a quick backgrounder of the subject that we have at hand to discuss. The subject that we're going to discuss is India's sheet metal industry, top trends and technologies. As per industry statistics, India's sheet metal sector constitutes about 15 to 20% of the $1.37 billion or rupees 8,000 crore plus domestic machine tools industry. And the industry is set to grow at a CAGR of more than 5% in the next 3 to 5 years. Manufacturing sectors such as automobile, auto components, aerospace and defense, consumer durables, electrical and electronics, and construction are the main demand drivers for the sheet metal industry. In recent years, innovations in the sheet metal technologies such as automation, additive manufacturing, hydraulic and pneumatic systems, laser processing, three-point bending, deburring, edge rounding, and slag dross removal have contributed to the growth momentum of the sector. Now, I feel very happy and very fortunate to introduce to you the speaker of our today's session, Dr. Arvind Patel, founder and CEO, Valgro India Limited. Let me let me take my time to introduce because his background is very illustrious. Dr. Arvind Patel is an accomplished young entrepreneur, speaker, trainer, and motivator, and has other credentials such as a technocrat, scientist, and educator. Simply put, he is a master of sales and brand management. He has gone throughout the globe, throughout the world to promote the Create Made in India brand idea. We are going to talk about his brand idea during the talk. Having come from a farming family in a small village, Dr. Patel set out on his entrepreneurial journey with an industrial trade firm. He left the past behind him long ago. Dr. Arvind's bold style, motivational talks, and charitable work have also brought him widespread acclaim. Dr. Patel's goal is to make the Make in India brand a worldwide household name. Everyone of Indian descent, in his perspective, should act as an ambassador of India, and he knows his obligations to India, our country. He has earned a Master of Business Administration in International Business. Swahili University in Panama, the USA, has awarded him a PhD in metal finishing and surface treatment, now a background of his company, Valgro India. With the ISO 9001-2080 quality regulation from TUV SUD Germany, TUV SUD Germany, Valgro India Limited is one of Asia's largest deburring and metal finishing equipment manufacturers. Since its inception in 1996, Valgro has built a reputation as a leading provider of surface treatment solutions for the metalworking industry via the development of innovative and reliable specialty products and machinery. Deburring machines and wide belt grinding machines manufactured by Valgro India are among the best in the world. Using Valgro's deburring, precision grinding, and edge rounding technologies, you can get the job done faster while still getting the best possible finish. It's such a pleasure to have Dr. Patel with us. Dr. Patel, thank you so much for coming to talk with us. Dr. Patel, I'll ask the first पहला सवाल ये आपसे जो हमारे सारे ऑडियंसेस जानना चाहते हैं, सारे रीडर्स जानना चाहते हैं, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं. इतना इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, आप फार्मिंग फैमिली से आते हैं और आप ब्रांड मेड इन इंडिया, क्रिएट मेड इन इंडिया ब्रांड को आप पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं. आप अपने बारे में बताएं, कैसे कंपनी शुरू हुई, उसकी भी हमें जानकारी दें. थैंक यू. बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन आपने रेस किया कि बैकग्राउंड. हर एंटरप्रेन्योर का एक बैकग्राउंड होता है, कहीं ना कहीं एक छोटी बूंद से वो स्टार्ट करता है. एक छोटी सी पॉइंट होती है, डॉट कहेंगे, डॉट से स्टार्ट होता है और वो डॉट को फिर वो कोशिश करता है कि लंबा खींचने का. तो 1991 में मैंने छोटा सा ट्रेडिंग फर्म खोला था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ट्रेडिंग करने का. और वो उस वक्त से ऐसा मकसद था कि इस तरह का हम लोग काम करें कि ताकि कोई भी कस्टमर हमसे माल ले. तो मतलब जाने अनजाने में इट वाज माय कस्टमर सेंट्रिसिटी कि किसी भी कस्टमर को कभी भी कोई दिक्कत ना हो, वो 1991 से सोच थी. और उसके पहले मैं जॉब करता था कहीं पे किसी कंपनियों में, तो वहां पे भी मेरा फोकस यही रहता था कि कस्टमर ऑलवेज सेटिस्फाई होना चाहिए हर एस्पेक्ट से. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जगह पे कस्टमर डिलाइट
वो बहुत पहले से मेरे पास था। कस्टमर डिलाइट मुझे आज समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, बट उस वक्त मैं कोशिश करता था कि क्लाइंट जो डिमांड कर रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा दो। तो 1991 से हमने एक ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट किया था, और 93-94 के अंदर किसी ने एक छोटा सा स्कॉच ब्राइट बर्तन घिसने वाला हमें प्रोडक्ट दे दिया कि अरविंद ये हमें चाहिए, आप हमको ला के दो तो हम आपसे माल खरीदेंगे। तो भाई आग तो थी कुछ करने की। तो मैं पूरा अहमदाबाद घूमा स्कॉच ब्राइट लेके, कहीं नहीं मिला। तो कम से कम एक महीना मैंने सर्चिंग भी किया है। तो मतलब वो वेंडर डेवलपमेंट का भी इनडायरेक्टली काम हो गया कि कहीं ना कहीं सर्चिंग किया कि बर्तन घिसने वाला स्कॉच ब्राइट लाओ। तब इंडिया में 3M नया नया आया था। तो कम से कम 22 दिन मैंने हर बिल्डिंग, बॉटम से लेके टॉप तक हर बिल्डिंग को घुमाऊं, हर गली मोहल्ला घुमाऊं। तब जाके एक मतलब कस्टमर मिला, जो वेंडर मिला, उसने बोला कि मेरे पास है। तो वो प्रोडक्ट लेके मैं कस्टमर मतलब एंड कस्टमर के पास गया, उसको दिखाया, और धीमे धीमे मेरा बिजनेस चालू हुआ। तो पहले से मकसद तो था कि ऐसा प्रोडक्ट हाथ में लेना को जो कोई न करता हो, और ये मेरे हाथ में प्रोडक्ट आ गया मेरी आग की वजह से। तो तब इंडिया में स्कॉच ब्राइट बेचना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम मैंने 93 से 94 95 में 3M के साथ काम करके बिजनेस स्टार्टअप किया। और 95 में फिर ऐसा लगा कि अगर हम लोग किसी भी कंपनी का ब्रांड करते हैं तो हम तो एज ए फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं। अगर मैं किसी की ब्रांड सेल कर रहा हूँ तो एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ कि मुझे 5% 10% मिल गया, मेरा फ्यूचर क्या। तो ये कहीं ना कहीं तो था कि हम हमारी ब्रांड से कुछ करेंगे। तो 1995 में हम लोगों ने फिर कुछ इंपोर्ट रॉ मटेरियल स्टार्टअप किया, और हमारी ब्रांड से एक छोटा सा फैक्ट्री स्टार्टअप किया, वेलग्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, और एज ए कन्वर्जन सेक्टर चालू किया। तो रॉ मटेरियल जम्बो रोल हम लेके आते थे, छोटे छोटे टुकड़े करके, स्कॉच ब्राइट की साइज के टुकड़े करके हम सेल करते थे। 96 97 के अंदर हम लोगों ने उससे ब्रश बनाने चालू किया। तो हमारी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुआ है, इमीडिएट क्विक स्टार्ट नहीं हुआ है। कहीं गए, कस्टमर ने बोला अरविंद यार हाथ से घिसने वाला अभी नहीं, कुछ कुछ पॉलिशिंग आरपीएम पे घूमे और जल्दी रिजल्ट मिले, ऐसा कुछ करो। देन वी स्टार्टेड फॉर छोटा छोटा कन्वर्जन स्टार्टअप किया, बहुत सारा नुकसान किया। तो 3 साल तक तो हम लोगों ने R&D ही किया है। ब्रश बनाना, रिजेक्ट होना, हाई आरपीएम पे टूट जाना, फिनिश मिलना नहीं मिलना। तो 98 में कुछ एक प्रोडक्ट मुश्किल से बन गया जो हमने रिजेक्ट कर दिया था, और 4 दिन बाद वो प्रोडक्ट अपने आप फिनिश हो गया। तो हमें तब मालूम पड़ा कि इसको सीजनिंग का जरूरत है। तो तब मतलब इस तरह से हम लोगों ने हर स्टेज में कहीं ना कहीं बहुत R&D कर करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो था नहीं हमारे पास, तो हम इन हाउस ही टेक्नोलॉजी डेवलप करते गए और काम करते गए। जब 98 99 में फिर मैं एक बार जर्मनी गया, और वहां पे हमें एक छोटी सी एब्रेसिव्स कंपनी मिल गई। उन्हीं से हम लोगों ने टाइप किया, और टेक्नोलॉजी पूरा प्रोफेशनल हमने उनसे एडेप्ट भी किया कि हम इंडिया में काम करेंगे। तो दे दे आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि भी इंडिया का मार्केट हम सेल करते हैं। बट इंडिया में तब भी स्कॉच ब्राइट कोई नहीं जानता था, समझो। आज की तारीख में भी काफी इंडस्ट्री है जो स्कॉच ब्राइट प्रोडक्ट को नहीं जानती, मतलब सरफेस कंडीशनिंग प्रोडक्ट को नहीं जानती है। तो तब जाके उनको भी इंटरेस्ट था, तो हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया। तो 3 साल हमने फिर R&D किया। एक स्टेज ऐसा आ गया कि हम उनको गाइड करते थे, जर्मन को। द रीजन इज जर्मन प्रोडक्ट एक कोल्ड एनवायरनमेंट में बनती थी, तो गर्मी के मौसम में इंडिया में काम नहीं करती थी, वो काला स्पॉट छोड़ देती थी। और मिडल ईस्ट में तो 100% काम ही नहीं करती थी। और हमने जो इंडिया में जो प्रोडक्ट बनाते थे वो हमारा गर्मी में काम करता था, लेकिन ठंडी में नहीं काम करता था। तो हम लोगों ने दोनों ने ऐसे पैरामीटर सेट किए, दोनों कंपनी ने, और एब्रेसिव प्रोडक्ट हमारा चल पड़ा, और हमने इस तरह से एब्रेसिव को सक्सेसफुल बना दिया। तो आज की तारीख में एब्रेसिव में इंडिया में हम लोग नंबर 1 है, स्पेसिफिकली सरफेस कंडीशनिंग में। और हमारे जितने भी मेंटर है एब्रेसिव मैन्युफैक्चरर, मैं कंपटीटर नहीं कहूंगा, मेंटर ही कहूंगा, बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड, 100 पुरानी कंपनी है। वो लोग भी आज अपने कस्टमर को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट आप वेलग्रो के पास जाओ, वही करके दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा खुद की R&D की वजह से हुआ है। अब बात तो ये एब्रेसिव तो बना दिया, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी थे कि जिनके पास पॉलिशिंग के ब्रश यूज करने का टूल नहीं था, और जो टूल था तो ट्रेडिशनल टूल था, तो उसमें फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आता था। जो RA वैल्यू चाहिए, सर्टेन डीबरिंग चाहिए, उनकी टेक्निकल नीड जो चाहिए वो नहीं आती थी। तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी
उस जमाने में किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड नाम था, आज तो उसका KOEL फॉरेन की कंपनी हो चुकी है। उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि अरविंद भाई, ब्रश आप सप्लाई कर रहे हो, हमारा स्ट्रिप बहुत अच्छा पॉलिश हो रहा है, बट आप कुछ मशीन भी हमको बना के दे दो ताकि हम एक हाई RPM में अच्छी तरह से काम करें। तो हमने पहला मशीन बनाया हम लोगों ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के लिए। मैं बात कर रहा हूँ 15-16 साल पहले की, और वो सक्सेसफुल हो गया। और वो रिस्क लिया वहां के जनरल मैनेजर ने, अदरवाइज नहीं कोई रिस्क लेता है, कोई एम्प्लॉय रिस्क नहीं लेता, बट उनको हमारी प्रोडक्ट पे, हमारे नॉलेज पे भरोसा था और वो प्रोडक्ट सक्सेस हो गया। तो वहां से फिर हमने स्टार्टअप किया कि स्पेशल पर्पस मशीन भी बनाना चालू करें। तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो, हमने 2006 में SPF मशीन बनाना चालू कर दी। मतलब वेरी फास्ट हम लोग मतलब डिसीजन लेते थे। मेरे ग्रुप में भी आज लोग कह रहे हैं कि अगर अरविंद से बात करना है ना, तो अरविंद की स्किल को कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब उसके दिमाग में आ गया तो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो मेरी सोच आज भी ऐसी है कि अगर किसी ने बोल दिया ये करना है तो करना है। तो हमने 98 से जो जर्नी स्टार्टअप किया था मैन्युफैक्चरिंग, 2006 में तो हमने मशीन बिजनेस स्टार्टअप कर दिया। पहले छोटे छोटे मशीन बनाते थे हम लोग, छोटे छोटे सॉल्यूशंस देते थे। सडनली फिर हमें एक जर्मनी यूरोब्लेच गया मैं 2012 समझ लो, 2012 में मैं जर्मनी यूरोब्लेच में गया, और वहां पे एक किसी के स्टॉल पे गया जो मशीन बनाता था, वो वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 1 है। तो मैंने उनको पूछा कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सरफेस कंडीशनिंग एब्रेसिव्स विद दिस जर्मन कस्टमर, जर्मन कोलैबोरेटर विद अस, हमें मशीन आपका बेचना है इंडिया के अंदर, तो गिव अस योर रिप्रेजेंटेशन। तो मेरा मकसद कोई मशीन बनाने का था ही नहीं। मेरा मकसद था कि किसी अच्छी ब्रांड को मैं इंडिया में प्रमोट करके लेके आऊं ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो फास्ट हो। तो उसने मेरा इंसल्ट कर दिया कि हम लोग इंडिया के साथ धंधा नहीं करना चाहते। तो मतलब क्यों? तो बोले आप 2 साल धंधा करते हो और फिर कॉपी करते हो। तो और सडनली उसका मेरे को पिंच लग गया यहाँ पे कि यार ये बात तो गलत हो गई। मैं कॉपी करना नहीं चाह रहा हूँ। अगर कॉपी करना चाहता तो मैं जिससे एब्रेसिव में किसी से काम किया है उसका भी कर लेता। मैं आज भी मेरा जॉइंट ब्रांड है। तो यहाँ पिंच हो गया। उसने बोला कि मैम काले पीपल के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। तो मेरे दिमाग में सटक गई। तो मैंने मेरे जो दूसरे डायरेक्टर उनको बोला कि आप एक काम करो भाई, आप पूरा यूरोप घूमो, अब मैं मशीन इसको स्कैन करता हूँ। तो मैं उसी के स्टॉल के सामने बैठ गया नीचे, मशीन को पूरा स्कैन किया, क्या फंक्शनैलिटी है वो सब मैंने इस तरह मतलब पागल की तरह से ऐसा किया है मैंने एग्जीबिशन के अंदर। आप समझ लो कि ऐसे ब्रश रोटेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे प्रेशर होगा, वो सब पूरा विजुअलाइज किया। फिर शाम को 4 बजे वापस उस भाई को मिला और वो बोला कि आज आज के बाद आप इंडिया में एक भी मशीन नहीं बेच पाओगे, इसका गारंटी दे के आया। और मैं 2 साल के अंदर मशीन मेटल पॉलिशिंग का लेके आता हूँ जो आपके सामने बेचूंगा। तो हमने इंडिया आके सीधा R&D की। दूसरे डायरेक्टर बोला अब एब्रेसिव तुम देखो, डेवलपमेंट हो चुका है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो चुका है, आप देखो। मैं मशीन बिजनेस में फोकस करता हूँ। क्योंकि हर इंडस्ट्रीज का या हर एंटरप्रेन्योर का एक मकसद होता है ग्रो करना, स्केल करना, या तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में या बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। मेरे पास दोनों पास जगह थी। बैकवर्ड में भी जगह थी मेरे पास क्योंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था और कन्वर्जन करता था। फॉरवर्ड में मेरे पास मशीन बिजनेस था। तो मैंने मशीन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सिलेक्ट किया। 2 साल कंटिन्यूस R&D किया है हमने आनंद भाई, और एक भी मशीन हमने सेल नहीं किया। बनाया मशीन रिजेक्ट किया, बनाया मशीन रिजेक्ट किया, बनाया मशीन रिजेक्ट किया। कम से कम 1 करोड़ रुपए हमने R&D में डाल दिया है। मशीन बन गया मेरा। हेलो, मशीन मेरा बन गया। अब उस मशीन को हम ब्लैश इंडिया में एक्सपो में हम लोग लेके आए, और ये हमारे टर्निंग पॉइंट वहां से हुई। और आज हम लोग यहाँ पे, आनंद भाई सुन रहे हो मेरी बात? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। वीडियो थोड़ा सा और आज रुका हुआ है बट आवाज आ रही है आपकी। ठीक, तो आज ऐसी नौबत आ चुकी, आज इंडिया के सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरर में हमारा नाम है मेटल फिनिशिंग के अंदर। हमारे पहले जो लोग थे वो भी आज रिस्पेक्ट दे रहे कि वाइब्रो ने एक अच्छा सा ब्रांड। ये लगता है कि कनेक्शन टूटने की वजह से अरविंद भैया आ गए।
अरुण भाई आप बताएं जब। कट गया था। जी 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 जी। हाँ। नहीं, आपकी तो आवाज आ रही है आप। जी ओके ओके। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हमने जो R&D में शुरुआती 3-4 साल में जो पैसे लगाए, वो पैसे आज हमको रिटर्न आ रहे हैं। यूजुअली इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग R&D करते ही नहीं है। जी तो आज आपने जो तारीफ की मॉर्निंग में अभी सवेरे कि अरविंद भाई आपने बहुत अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिश किया, तो उसका रीजन ये था कि हमने पहले R&D बहुत किया है और क्लाइंट जी की नीड को समझने की कोशिश की है, और उस जी हिसाब से मशीन डिजाइन की, उस हिसाब से ब्रश डिजाइन किए, तो वो जी सप्लाई किया है। और इसी जी वजह से आज इंडिया में जितने भी मेटल फिनिशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर है, आज वेल्क्रो को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो बहुत पुराने होने के बावजूद भी। और सेकंड, हमने किसी का भी कॉपी नहीं किया और न किसी का बास्केट छीना है। हमने हमारा खुद का बास्केट बनाया है, नया जी बास्केट। और जी जो कस्टमर की नीड है उसी डिजाइन पर मशीन डिजाइन करके आज हमने एक स्केल करने की कोशिश की है। तो ये हिस्ट्री इस जी तरह से था कि छोटे से स्टार्टअप में R&D कर करके पैसों के सामने कभी भी नहीं देखा हम लोगों ने, कुछ भी नया दिखा तो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन। ये वजह से आज ब्रांड एक एस्टेब्लिश हो चुका है, और आज हम लोग वेल्क्रो के रिस्पेक्ट के तौर पर वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं, और मोर देन जी 16 कंट्रीज में एक्सपोर्ट, हर कस्टमर हमारे हैप्पी है, तो ये हमारा प्लस हंड्रेड पॉइंट है। आप बोल रहे हैं 116 कंट्रीज में, 116 16 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट है, 16 कंट्रीज में। जी जी 16 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। और हमारे जी काफी आप। यूट्यूब पे वीडियोस है कि जहाँ कस्टमर जी जी फीडबैक दे रहा है, कोई मैक्सिको से है, कोई यूएस से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, तो दैट विल अर- बी गुड अचीवमेंट फॉर मेड इन इंडिया ब्रांड। अरुण भाई आपका वीडियो काम कर रहा है क्या आपकी तरफ? हाँ, मेरा वीडियो मेरे से काम कर रहा है। हाँ, यहाँ पे नहीं आ रही है फीड, एक बार चेक करेंगे, बीच में हम बात करते रहते हैं। हाँ, उनका वीडियो लगता है कि काम नहीं कर रहा है अभी। ही इज ट्राइंग टू फिक्स। यस, हाँ जी, 16 कंट्रीज में अरविंद भाई आपके एक्सपोर्ट से। आपके आवाज म्यूटेड है। हम्म। अ, जी सॉरी। हाँ अरविंद भाई। हाँ, तो एक्सपोर्ट हमारा मेजर है, क्योंकि हम लोगों ने जब इंडिया में फोकस किया ना माल बेचना, तो यहाँ पे एक इश्यूज आ रहा है कि क्लाइंट भरोसा नहीं करता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी पे। तो हम लोगों ने फिर 5 साल यहाँ बहुत कोशिश की क्लाइंटों को समझाने की, बट कोई क्लाइंट हमारे पास नहीं आ रहा था, सिवाय के 2-4 कस्टमर। तो फिर हमने एक्सपोर्ट फोकस किया, और एक्सपोर्ट में हम लिफ्ट हो गए सर। तो आज हमारे पास अच्छे कस्टमर है, एक्सपोर्ट बैकग्राउंड हमारा अच्छा है, ऑलमोस्ट 60 to 80% एक्सपोर्ट है। और 2 बार तो हमको इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अवार्ड भी मिला हुआ है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनरी करके। तो ये यही वजह से आज मतलब वेल्क्रो एक ब्रांड के तौर पर उभरा हुआ है, कंटिन्यूस R&D। अरुण भाई, फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। इस पे बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं और ऑडियंसेस के पास भी हैं, रहेंगे, रीडर्स के पास भी रहेंगे। दो चीज मेरे दिमाग में बनी है अमंग मेनी थिंग्स। एक तो ये कि आप फेलियर से नहीं डरे। आपने 1 करोड़ रुपए, जब आप R&D में रिजेक्शन पे रिजेक्शन, देखिए वो सबसे बड़ी चीज है हमारे युवा दर्शक कि वो एक दो चीजें, एक तो वो पैसा नहीं लगाना चाहते सोच के कि नुकसान होगा, और दूसरी रिजेक्ट, 1 या 2 रिजेक्शन में ही उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, काम सही छोड़ देते हैं। सही। मुझे ये बताइए इस पर कि दो चीजें आप हमें बताएं। एक तो कि लॉस का क्या रोल है हम्म बिजनेस में, हम्म नंबर वन। नंबर टू, रिजेक्शन आप कैसे झेल जाते हैं या झेल गए उस वक्त? हम्म। देखो, सही एंटरप्रेनर होता है ना, तो वो लॉस से नहीं डरता है, लॉस उसको लर्निंग करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एंटरप्रेनर नहीं समझता है। प्लस मुझे तो यहाँ दिख रहा था कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड में बहुत कम मैन्युफैक्चरर है, इंडिया में तो कोई है ही नहीं, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि 2 सेल्समैन को भेजा गया था अफ्रीका में, और दोनों को अलग अलग मार्केट में भेजा था, और दोनों से रिव्यू मंगाए थे। तो एक सेल्समैन ने बता दिया अपने मैनेजमेंट को कि सर यहाँ कोई चप्पल पहनता नहीं, कोई जूता नहीं पहनता, यहाँ पे बिजनेस नहीं होना है। राइट, स्टोरी बहुत पुरानी है। और एक सेल्समैन ने आंसर दिया कि सर यहाँ कोई जूता नहीं पहनता,
कोई चप्पल नहीं पहनता, यहाँ पोटेंशियल जबरदस्त है। आपकी सोच क्या काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो दूसरा नंबर वाला सेल्समैन हूँ कि कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, मतलब लोगों को एजुकेट करो, बिजनेस मिलेगा लोगों की। उसकी भी दाद देनी, बस उसकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अरविंद भाई, जो आपने किया कि चप्पल भेजा, नुकसान पर नुकसान भी हो रहा है, और 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, सारे नुकसान सहने के बाद फिर दिखा। वो इस कहानी का सीक्वल है, इस कहानी का पार्ट 2 है, जो लोग अमूमन नहीं बताते कहानियों के समय। वो जैसे शादी तक बता देते हैं कहानी, उसके बाद क्या हुआ नहीं बताते फिल्मों में, वैसे इस कहानी का पार्ट 2 जो आपने जिया, कि चप्पल भेजने के बावजूद भी रिजेक्शन आ रहे हैं, बावजूद भी पैसा जा रहा है, फिर भी आप डटे रहे, वो आप सीक्रेट प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को। सर ऐसा था कि आपने मेरे क्या हुआ, नमक छेड़ दिया आपने। रशिया मशीन एक्सपोर्ट किया था, बैंकॉक मशीन एक्सपोर्ट किया था, और दुबई मशीन एक्सपोर्ट किया था। 3 मशीन रिजेक्ट हो गए परफॉर्मेंस की वजह से। मतलब चप्पल भेज दी हम लोगों ने चप्पल नहीं पहने, क्योंकि उनकी चप्पल पहनने की आदत ही नहीं थी, तो कैसे चप्पल पहनना, राइट। वहां पे मैं कोशिश कर रहा था कि इनको कैसे चप्पल पहना जाए। तो 2 जगह पे मशीन टोटल रिजेक्ट हुआ, कहीं मेरी गलती थी, कहीं उन लोगों की गलती थी। बट मेरे जहन में हमेशा एक चीज आज भी होती है कि मैं मेरे भारत देश का नाम खराब नहीं करने दूंगा। आफ्टर ऑल मैं भारत का बिजनेसमैन हूँ, भारत का नाम रोशन करना है, और भारत का रेपुटेशन इंडिया के बाहर बहुत खराब है। हम कुछ भी बनाते, कुछ भी बेच देते। अभी कल ही पंजाब से कोई बड़ी कंपनी का ओनर मेरी फैक्ट्री आया था, और 2-3 छोटे छोटे कस्टमर के पास जाना होगा, उसके वेंडर के पास। उन लोगों का वेबसाइट बहुत बढ़िया था, जैसे कॉर्पोरेट। जब उनकी फैक्ट्री हम लोग विजिट किए तो 10 बाय 10 की खोली थी और कुछ भी नहीं था। आज भी अपना भारत देश का माहौल ये है एंटरप्रेन्योर का, दिखावा बहुत करते हैं, हालांकि जेन्युइन होता नहीं। और वो जो पंजाब का रेलवे का सप्लायर है, बहुत बड़ा सप्लायर है, वो बैड इंप्रेशन लेके गया हमारे गुजराती होगी, तो ये गलत बात है। तो ये इंप्रेशन मुझे वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं से निकालनी थी। इंडिया में अगर ये इंप्रेशन है तो बाहर क्या होगा। तो रशिया का मशीन मैंने वापस लिया है, पैसे पूरे दिए। बैंकॉक का मशीन मैंने वापस दिया है, पैसे दिए। रीजन, इंडिया का मान खराब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैं उनको बोल सकता था कि सर इसमें यही टेक्नोलॉजी है, मैं नहीं दूंगा। बट दोनों को अपग्रेड करके नया मशीन वापस भेजा सर, उसका फ्रेट कॉस्ट मैंने दिया, कस्टम दी, सब मैंने किया। मतलब ऐसे बहुत सारे सेटबैक चप्पल बेचते बेचते हुए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था उसका 8 नंबर का साइज होता है, 6 नंबर का है, हमारा इंडिया का 6 नंबर और वहां का अफ्रीका का 6 नंबर, यही सब कंसेप्ट था। अगर मैच करो तो लॉस मुझे लर्निंग करवा के गए कि किस कंट्री में उन लोगों का बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, क्या डिमांड कर रहे वो लोग, और हमसे उम्मीद क्या है। और मैंने भरोसा दिलवाया कि आपको जो चाहिए वही दूंगा मैं। तो इस तरह से लॉस हमको लर्निंग में ट्रांसफर करके लेके गए। एक रिलेटेड पॉइंट अरुण भाई, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपकी बात से प्रभावित हैं और हो रहे हैं। रिलेटेड बात मुझे पूछनी है कि देखिए, कई बार होता है कि लॉस, खासकर ऐसे मार्केट में, इंडिया के मार्केट में इतना बड़ा है जहां हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के ट्रेडर्स हैं। अब दुनिया भी जब ये एक्सपोर्ट करने जाते हैं, कई बार बहुत लोग गंवा देते हैं, तो उस डर में लोग नहीं भी लगाते भाई। तो कैसे समझे, एक एंटरप्रेन्योर कैसे समझे कि ये लॉस ले सकते हैं, ये लॉस नहीं लेना चाहिए, यहाँ बस हार्ड स्टॉप कर दो बस, है ना, और कट योर लॉसेज जिसको कहते हैं, ये कैसे अंतर समझे एंटरप्रेन्योर। सर ये बहुत मतलब क्या डीप क्वेश्चन है कि लॉस को कैसे समझा जाए और कहाँ खड़ा होना। मैं ऐसा कहूंगा कि जहां से आपको मालूम होता है ना कि यहाँ गलत हो रहा है, तो वहां खड़ा नहीं हो जाना है, वहां से रास्ता बदलने की कोशिश करनी है, लेकिन मकसद पे तो जाना है। क्योंकि आपको आपकी प्रोडक्ट पे भरोसा है, तभी तो आपने प्रोडक्ट किया, तभी तो बनाया। किसी का अगर मैं कॉपी करता तो भरोसा नहीं था। किसी की गाड़ी देख के अगर मैं उसकी प्रोडक्ट कॉपी करता हूं तो हो सकता है मेरा कंपनी बंद करना पड़े। मुझे मेरी प्रोडक्ट पे भरोसा था। तो कहीं अगर अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा होता है और वहां आपको लगता है कि यहाँ मेरा गलत पॉइंट हो गया, यहाँ लॉस कर रहा हूँ, तो वहां लॉस को स्टॉप करके
रास्ता चेंज करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री स्टॉप कर देना चाहिए। मैंने लिटरली 3 बार बहुत बड़े सेटबैक लिए हुए हैं। आज मेरी कंपनी का ब्रांड वैल्यू शायद बहुत है, लेकिन मैं कभी भी काफी लोगों से बोलता हूँ कि यार ब्रांड वैल्यू है तो उसका मतलब क्या। मेरा जो ड्रीम था 2020 तक 500 करोड़ का कंपनी करना, 500 एम्प्लॉय को रखना, वो तो नहीं हुआ, तो आई एम अनसक्सेसफुल मैन। तब जाके वो बताते करेंगे 3 बार तो तू गिरा है यार, 5-5 10-10 करोड़ का लॉस किया है तूने। और मैंने काफी बार फैक्ट्री क्लोज भी करने का कोशिश किया है सर। 6-6 महीना में काम नहीं किया है, लेकिन 6-6 महीना हर एम्प्लॉय को मैंने सैलरी दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से काम करते हो ना, तो कायनात आपको साथ देती है। तो एक बार हमने फैक्ट्री स्टॉप कर दिया था, सब एम्प्लॉय को बोल दिया था कि अब 1 महीने का सैलरी मैं दे सकता हूँ, आप 1 महीने के बाद जॉब ढूंढ लो। और 15 दिन बाद मुझे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला, आप समझ लो। और पैसे आ गए, ऑर्डर के साथ साथ पैसे आ गए। तो भगवान को मंजूर नहीं होता है, अगर आप सही दिल से काम करते हो ना, तो भगवान आपकी एग्जाम लेता है। और एग्जाम किसकी लेता है? जो पढ़ाई करता है उसी की लेता है। सही है ना? कितनी बड़ी बात बोल दी आपने, इतनी सारी अच्छी बड़ी बातें बोल रहे हैं। देखिए, इन सारी चीजों में मुझे एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि जो आपने कहा कि कॉपी नहीं करना, वो मेरे दिमाग में इसलिए भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक देश है, अब देखिए सब देशों की अपनी अपनी वो होती है, ट्रेडिंग का अपना है, बट उसके रिश्ते, देशों के रिश्ते इसलिए खराब हुए क्योंकि एक देश ने कॉपी करना शुरू कर दिया, उसका रेपुटेशन बन गया। अब आज ये हालत है कि सैंक्शंस हो रहे हैं, अपने जो अमेरिका है अपने प्रोफेशनल्स को वापस बुला रहा है कि इनके फैक्ट्रीज में ये हाल है कि लोग रिजाइन कर दे रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। हालांकि उन्होंने उनका एक समय नाम था, अभी तक है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में वो इतने बड़े जायंट हो गए दुनिया में, लेकिन जो रेपुटेशन है वो उनको अभी तक फॉलो कर रहा है। और आज दिक्कत कर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही अरुण भाई, जो जो एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करनी चाहिए कि भाई फॉलो नहीं करो, वैल्यू ऐड करो। आपने वैल्यू ऐड किया, आपने वापस दिया वैल्यू। ये इस बात की मैं तारीफ भी ज्यादा करना चाहूंगा, अपलॉड करना चाहूंगा कि और सीखें लोग ये बात। बहुत बढ़िया। तो अरुण भाई, इस बारे में देखिए, मैं चाहूंगा कि और हम इस बारे में बात करें। अभी थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहूंगा। हमारे पास आपके साथ वक्त आपने 1 ही घंटा दिया है, इस बारे में तो कितने घंटे कितने दिन बात हो सकती थी और आपसे सीख सकते थे इंडस्ट्री के बारे में। शीट मेटल इंडस्ट्री में थोड़ा आप हमारे रीडर्स को बताएं कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है इन द सेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। आप कहाँ पे क्या चुनौतियां देखते हैं, क्या अच्छी चीजें देखते हैं, और तीसरा सवाल ये है जो मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना चाहें कि क्या क्या तकनीकें इंडिया में जिसका पोटेंशियल है, क्या चल रही है। 3 चीजें, इंडस्ट्री की क्या हालत है, क्या फ्यूचर है, और क्या तकनीकियां चल रही हैं। देखो, आपने क्वेश्चन जो पूछा इंडस्ट्रीज की क्या हालत है, तो अगर सच बताने जाऊं तो हमारे इंडस्ट्रीज और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें 10% अगर छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि वो विजनरी है। 90% इंडस्ट्रीज विजनरी नहीं है, इंडियन इंडस्ट्रीज। और उस 90 को भी अगर मैं सेग्रीगेट करता हूँ कि ऊपर टॉप वाले अगर 10% और लेते हो, तो 80% इंडस्ट्रीज एसएमईज है, जिनको करना तो बहुत कुछ है, बट उनके पास या तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो इंफ्रा नहीं है, नॉलेज और इंफ्रा दोनों है तो स्किल नहीं है, और स्किल भी है तो उनके पास मार्केट नहीं है। तो 80% इंडस्ट्रीज कोरोना के बाद मैं तो डाउनफॉल ही देख रहा हूं। और जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत काम है, वो सच में उनके पास बहुत काम है। द रीजन इज, एनालिसिस मैंने किया था, द रीजन इज जिनके पास बहुत काम है ना, दे आर निश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। तो जो मैंने 20% आपको अलग करने का बताया, वो 20% के पास इतना सारा अच्छा काम आ चुका है इंफ्रा का। वो 20% ने नीचे अपने वेंडरों को, जो क्वालिटी वेंडर है, जो विजनरी वेंडर है, जो छोटे मैन्युफैक्चरर है, उनको ऑफलोड किया है। रूटीन बनाने वाले या तो मास प्रोडक्शन करने वाले के पास आज की डेट में मार्केट नहीं है शीट मेटल फैब्रिकेशंस के अंदर। और मार्केट है
तो वो सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हैं, कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं है। तो मार्केट का सिनारियो ओरिजिनल ये है। अब इन लोगों को आगे बढ़ाना होगा ना, तो इनको सीखना पड़ेगा कि वो 20% क्या डिमांड कर रहे हैं। कोई भी जगह पे कहीं भी जाओगे आप, तो रूल करने वाले ऊपर 20% ही होते हैं। अगर उसकी नीड आपने समझ ली ना, तो ये पूरा मास और क्लास दोनों है ना, हमेशा आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता रहेगा और हमारा ग्रोथ चार्ट भी बढ़ाता रहेगा। लेकिन नीचे जो मास और क्लास लोग हैं, उनको कुछ नहीं करना। अगर उनको आप सिखाते हो, तो वो ही बोलते हैं, अरे इतना ही करना है, उससे ज्यादा क्या करना है, 8 घंटे बाद तो घर ही जाना है, हमको मर ही जाना है, 2 रोटी मिल जाती है 2 वक्त की। मतलब बिना गोल के, बिना सपनों के वो लोग भारत को ग्रो नहीं करवा सकते। सरकार कितना भी हेल्प कर ले रहे एमएसएमई को या एसएमईस को, लेकिन वो ग्रो ही नहीं होना चाहेगा तो क्या करोगे। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेस आ रहा है, हमें इन लोगों को कैसे टेक्नोलॉजिकली एडॉप्टर बनाए। आज की तारीख में मैं मेरी प्रोडक्ट अगर कहीं सेल कर रहा हूं, तो मेरा यूएसपी बन चुका है, सर मेरा प्रोडक्ट अर्ली एडॉप्टर के लिए है। यू आर अर्ली एडॉप्टर, तो मेरे से बात करो। क्योंकि वो नहीं तो खाली इंक्वायरी करेगा, फिर बाद में बताएगा बजट नहीं है या टेक्नोलॉजी अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमारे कस्टमर नहीं। तो एजुकेशन एक बहुत जरूरी है हर लेवल पे, जो हमें लेना चाहिए। सेकंड, हमें विजन अभी हमारा जो ये है ऐसा करना चाहिए। हम लोग 8 से 8 के चक्कर में फंसे, सवेरे 8 से रात के 8, 8 बजे बाद घर जाके हम कुछ नहीं करते। मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो जॉब करते उन लोगों की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो सिखा ही नहीं जा रहे। अगर जो आपको रात का 8 से सवेरे 8 तक जो मिल रहा है, उसमें एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है उसके ऊपर हम लोग अगर फोकस करेंगे, तो हम जिस पोर्टफोलियो में है या हम जिस डिपार्टमेंट के हेड है, वो हम एंटरप्रेन्योर ही है, वो हम ओनर ही है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि मैं अगर एम्प्लॉय हूं इस कंपनी का, तो एम्प्लॉय नहीं हूं, आई एम द ओनर, आई एम द एंटरप्रेन्योर। क्यों? मैं मेरा 8 घंटा इस कंपनी को सेल कर रहा हूं। हमारे एम्प्लॉय जो टीम है, जेनरिक बात कर रहा हूं, कोई मतलब जो आदमी गलत ना ले ले, जेनरिक बात कर रहा हूं। एम्प्लॉय का माइंडसेट ऐसा हो चुका है 8 सेट का। वो अपने आप को जब एंटरप्रेन्योर समझने लगेंगे, ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी इंडस्ट्रीज। और एक इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, डरते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया और धंधा नहीं मिला तो, मतलब नेगेटिव सोचते हैं। सक्सेस होने के लिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन मैं कोट करता हूं कि अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो पहले नेगेटिव थॉट लाना जरूरी है। लेकिन नेगेटिव थॉट लाके अगर आप स्टॉप हो गए, तो आप डिप्रेशन में चला जाओगे। लेकिन नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे आया आपके पास, तो मैंने यहां से रास्ता मोड़ने की बात कही, वो हम नहीं करते। ये 2 चीज में हम लोग अभी चैलेंजेस है कि इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। और इसलिए आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि देश तो तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, मैं क्यों नीचे जा रहा हूं। इंफ्रा में आज बहुत काम है, रेलवेज, एयरपोर्ट, मेट्रोस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, कितना बड़ा काम है। तो ये टॉप पे जो 20% में काम आया, वो नीचे तो डाइवर्ट होगा, लेकिन नीचे कहाँ होगा, जो कैपेबल होंगे, जो ऊपर की नीड को समझने वाले होंगे, उनके पास काम आ रहा है। तो भारत देश आज की तारीख में कोई रिसेशन में नहीं है, कोई मंदी में नहीं है। हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वो वर्क का फ्लो हमारे पास नहीं आया है। ये मेरा थीसिस है, मेरा R&D है, हर एंटरप्रेन्योर के लिए, हर छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि नहीं नहीं आपको बिल्कुल। प्लीज सॉरी।
क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है ना, तो बड़ा का हाथ पकड़ना पड़ेगा, और बड़े की सोच के साथ आपकी सोच को मैच करना होगा। और सेकंड चीज है कि अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों की भीड़ में इकट्ठा हो जाए। सर वो धक्का मार मार के आपको बिठा देंगे। बॉम्बे का एग्जांपल देता हूँ, लोकल ट्रेन में अगर आपको चढ़ना है तो खाली खड़ा रहना है, लोग धक्का मार मार के रेलवे में बिठा देते हैं, और उतरना है तो दरवाजे पे आ जाओ, मेट्रो में से वो धक्का मार मार के उतार देते हैं। बस यही कंसेप्ट है, सफल होना है, सफल लोगों की भीड़ में घुस जाओ, लोग धक्का मार मार के आपको ऊपर लेके जाए, हम जाना नहीं चाहते। अरे अरुण भाई, आपने मेरे संघर्ष के दिनों की याद दिला दी। मुंबई मुंबई के कई बार तो मुझे नहीं भी जाना होता, तब भी लोग मुझे पहुंचा देते थे अंधेरी। और बोरीवली, मैं तो यूं ही मूंगफली खाने गया होता था प्लेटफॉर्म पे, पता चला मैं बोरीवली आ गया। तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है अरुण भाई कि एज अ एक संपादक के तौर पे जो मुझे दिखता है जब मैं बात करता हूँ, तो आपकी बिल्कुल बात देखिए सही है कि हमको मदद करनी चाहिए, जो स्पेशली जो एजुकेशनल लेवल पे, स्किल लेवल पे लोगों के अंदर जो उद्यमी है उसको इंस्पायर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात थोड़ी खटकती है, एज अ पत्रकार शब्द तो बहुत वो हो चुका है, तो एज एन ऑब्जर्वर कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ट्रस्ट का बहुत मुद्दा है। इंडिया के लेवल पे अलग अलग है ना, स्टेट्स हैं, तो आपस में भरोसा बहुत नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं, बातचीत नहीं करना चाहते, और उसका खामियाजा ये भुगतते हैं जो एसोसिएशंस हैं। एसोसिएशन स्ट्रांग नहीं है, वो नहीं है तो उनकी बात नहीं पहुंच पाती पॉलिसी लेवल तक। तो फिर लोगों को लगता है कि हम कट गए, तो ये साउथ है, तो ये नॉर्थ है, तो ये इंडस्ट्री यहाँ मजबूत है, तो अपने में ही रहो। ये बहुत साइलोज बने हैं, दीवारें बनी हैं। इस बारे में आपका क्या अनुभव है और क्या संदेश है? सर दीवारें तोड़ना होगा, हम लोग साइलों में फंसे हुए हैं, उसको तोड़ना होगा। और रही बात भरोसे की, तो भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने भरोसे से ही काम किया है। छोटा सा कंपनी था, तो अगर आज मैं मशीन बना रहा हूँ और एक मशीन की कॉस्ट 1 करोड़ रुपया है, तो कोई भरोसा देके तो 30% 50% एडवांस देगा ना। और 30-40 लाख रुपया मुझे एडवांस देना है, छोटी बात नहीं है सर। तो मैंने भरोसा कैसे खड़ा किया, 10-10 लाख रुपए में खड़ा किया। लोगों को मशीन दिया, नहीं चला तो मशीन वापस लिया, रेक्टिफाई किया, सुधार करके दिया, या तो पुराना मशीन वापस मैंने लेके स्क्रैप किया, लेकिन उनको नया दिया। तो आज मेरा वो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत काम में है। अगर कोई भी कस्टमर से बात करते थे और मुझे पूछते थे कि अरविंद भाई, मैं अगर आपको एडवांस दूं, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की, मैं अगर आपको एडवांस दूं तो क्या भरोसा आप मुझे माल दोगे? क्योंकि मशीन बिल्डिंग डिवीजन में एक चैलेंज है कि आज अगर हम कमिट करते 3 महीने में मशीन दूंगा, और लोग 6-6 महीने में नहीं देते हैं, तो वो भरोसा एक क्वेश्चन बड़ा हो जाता है कि वो सामने वाला ऑर्डर करने वाला भी छोटा मैन कंपनी है, उसका वर्किंग कैपिटल अगर एडवांस में फंस जाएगा और राइट टाइम नहीं दोगे मशीन, तो क्या? आज भी सुन रहा हूँ मैं। तो मैं लाइव एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि हैदराबाद में मेधा सर्वो लिमिटेड करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, शायद 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो लेके आया है, पूरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट उनके पास है, वो लेके आया है। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जो पूरी रेल की रेल बनाने वाली है, और उनको हमने कोटेशन दिया था। अब उन्होंने वर्ल्ड में, बड़ी कंपनी है तो वर्ल्ड वाइड तो कोटेशन मंगाएगी, बट सम हाउ काफी कुछ एनालिसिस करने के बाद पूरी मैनेजमेंट टीम ने एमडी को बोला कि सर हमारे पास अभी वेलग्रो एक ही स्रोत है, उसी का ऑर्डर करेंगे तो अपने को मशीन 4 महीने में देगा। बाकी लोग कोटेशन देने के लिए भी तैयार नहीं, और बाकी जो लोग हैं वो 3-3 4-4 करोड़ का कोटेशन दे के रखे हैं। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ी, जब उनको मैंने पूछा कि आपने मुझे ऑर्डर क्यों दिया तब। तो उन्होंने बोला कि अरविंद भाई, पहले कभी आपने इतना बड़ा मशीन नहीं बनाया, 60-70 लाख रुपए का, तो हम भरोसा कैसे करें? तो मैंने उनको 6 कस्टमर के नाम दे दिए वर्ल्ड वाइड। एक ऑस्ट्रेलिया का दिया, एक मेक्सिको, एक ब्राजील, एक यूएस, 2 इंडिया के, एक मिडल ईस्ट, एक दुबई। 6 कस्टमर के उनको रेफरेंस दे दिए, सभी अलग अलग कास्ट के, कोई इंडियन नहीं है। उन्होंने
6 के 6 को फोन किया है 1 घंटे में, एमडी खुद सामने है, एमडी ने ये मुझे बताया 6 ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है हर कस्टमर ने। जिनके पास मैं इंस्टॉलेशन के लिए नहीं भी गया था ना, उन्होंने बोला कि अरविंद मशीन इज वाइब्रस मशीन इज वेरी यूजर फ्रेंडली, प्लग एंड प्ले मशीन है। आप म्यूट हो। जी तो जी, मैं मैं तारीफ कर रहा हूँ इस बात की जो आपने बोला, बहुत बढ़िया बात बोली आप। तो सीधा एमडी का फोन आया कि अरविंद भाई हम अभी का अभी आपसे बात करना चाहते हैं। बोला हाँ सर बोलिए। मैं मीटिंग में था, मैंने 10 मिनट का टाइम देकर उनसे बात की कि हम ऑर्डर देवे ना देवे, हमारी टीम ऑर्डर देवे ना देवे, एज एमडी बोलता हूँ कि अरविंद भाई मैं आपके ऊपर और वाइब्रो के ऊपर अप्रिशिएट करता हूँ और भरोसा रखता हूँ कि आपने जो 6 रेफरेंस दिए थे वो 6 के 6 रेफरेंस पॉजिटिव फीडबैक आए। और मैं मेरी टीम को बोलता हूँ टेक्निकल अप्रूवल करके वाइब्रो को ऑर्डर दो। सर ये प्लस पॉइंट है, भरोसा जीतना। फिर मतलब उन्होंने 2 कस्टमर का तो बिल्कुल हूबहू कॉपी किया गया। अरविंद इन्होंने ये बोला है, एक कस्टमर को उन्होंने बताया कि अगर मशीन नहीं चला तो, इंग्लिश में। तो मैक्सिको का कस्टमर बोल रहा है कि सर आई पर्सनली मीट टू अरविंद पटेल बिफोर कोरोना। अगर फर्स्ट मैं गारंटी देता हूं कि अगर वेलब्रो में अरविंद पटेल काम करता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिलेगा। सामने ने काउंटर आर्ग्यूमेंट किया कि अगर नहीं मिला है तो सेकंड अटेम्प्ट में 100% मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसे वापस। सर उन्होंने 60-80 लाख रुपए का मशीन होगा हमारा, 20 लाख रुपया विद इन 1 आवर ट्रांसफर किया है। तो ये भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंडियन इंडस्ट्रीज आज भरोसे को दबा रही है, पैसों के लिए आज भरोसा टूट रहा है। जी जी जी, ये ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा इंडियन इंडस्ट्रीज को, छोटे से लेके टॉप लेवल तक। कितनी बढ़िया 2 बातें आपने बोली अमंग मेनी अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि एक तो भरोसे को जीतने के लिए टेस्टिमोनियल्स और रेफरेंसेस। देखिए आपने कितना बड़ा सीक्रेट शेयर किया हमारे लीडर्स के साथ, कि जब कई बार हमें लगता है कि रास्ता रुक गया है, मार्केट में लोग भरोसा नहीं कर रहे, काम नहीं आ रहा है, तो वहाँ टेस्टिमोनियल्स और रेफरेंसेस कितने काम आते हैं। जब आपके काम की तारीफ आप नहीं करके आपके कस्टमर्स करते हैं, उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। और जेन्युइन उन्होंने, जैसे आपने बताया, खुद से फोन किया, ये भी नहीं कि चलिए आपने मिलाया, वो तो खुद से ही पता किया उन्होंने। ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये और आपने बहुत बड़ी बात बोली। और ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब सर्टिफिकेट हो गया। आज अगर मैं वर्ल्ड में बिल्कुल। कहीं भी बोलता हूँ कि मेधा रेल में मेरा मशीन है, तो बाकी सभी रेलवे मैन्युफैक्चरर या रेलवे सप्लायर हमारे पास आज की तारीख में हमारे बास्केट में है। दिस इज द प्लस पॉइंट, ये माइलेज मिला। सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो तो ये नहीं समझ, लोगों को लगता है कि हमारी जरूरत नहीं है, या मार्केट नहीं सही चल रहा, या हम्म, कुछ लोगों ने कॉर्नर किया हुआ है। ये लोग ब्लेम गेम बहुत होता है वहां पर, जब आपके कस्टमर्स ही आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो वो अलग। बहुत अच्छी बात बोली है तुम भाई, बहुत हम्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए अभी ऑडियंस सवाल आने शुरू हो गए, तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसके बाद ब्रांड मेड इन इंडिया की जो आप बात करते हैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। हम्म। सवाल ये है कि मेटल फिनिशिंग इंडस्ट्री का जो ईवी मार्केट है, वो उसकी बात हो रही है, और काफी लोग कह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि डिमांड बहुत ग्रो कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो जो मेटल पॉलिशिंग मशीन्स हैं उनका ईवी में कितना काम होता है, और वो क्या एक मजबूत डिमांड दिख रही है क्या ईवी सेक्टर से बिल्कुल दिख रही है आने सर, वाले समय? बिल्कुल दिख रही है कि अगर आप चेक करेंगे तो ईवी सेक्टर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर ही है, और वहां पे भी शीट मेटल पार्ट्स ही ज्यादा कंजम्पशन है। पहले तो क्या था कि पेट्रोल व्हीकल डीजल व्हीकल में इंजन पार्ट्स थे जहां शीट मेटल नहीं कहलाएंगे, तो एक पूरा डिफरेंट सेगमेंट था। तो मशीनरी स्पेयर पार्ट या इंजन स्पेयर पार्ट बनाने वाले का मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन ईवी सेगमेंट में पूरा शीट मेटल फेब्रिकेशन है। अब 90% शीट मेटल फेब्रिकेशन है बैटरी छोड़ के। तो मुझे तो बहुत मार्केट सही दिख रहा है। प्लस ईवी सेगमेंट में एक प्लस पॉइंट ये आ गया कि लोगों ने एरोडायनेमिक डिजाइन स्टार्टअप कर दिया है ताकि एनर्जी सेव हो और किलोमीटर बढ़े। और ये एरोडायनेमिक डिजाइन के साथ साथ ये बहुत मायना करता है कि जो ओरिजिनल मेटल यूज किया है
उसको सरफेस फिनिश भी सही हो, क्योंकि जितना सरफेस फिनिश सही होगा उतना उसके ऊपर के बाकी के प्रोसेस, डीबरिंग की प्रोसेस पकड़ लो, मेटल फिनिशिंग की प्रोसेस पकड़ लो, बाद में पाउडर कोटिंग होता है या पेंटिंग होता है, तो पेंटिंग का बॉन्डिंग सही होता है। और पेंटिंग का बॉन्डिंग सही होगा तो वो ईवी व्हीकल या वो ऑटोमोबाइल व्हीकल की लाइफ बढ़ जाती, वो रस्ट प्रोटेक्शन का गारंटी 10 से 15 साल ज्यादा दे सकते हैं। तो सरफेस फिनिशिंग का इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ गया कि अगर आपको पाउडर कोटिंग करना है या कोई भी कोटिंग करना है, इलेक्ट्रोफोरेटिक कोटिंग करना है, क्रोम प्लेटिंग करना है, एनोडाइजिंग करना है, सरफेस फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईवी सेक्टर में, शीट मेटल फैब्रिकेशन में आज ड्राइंग के अंदर लिखा हुआ होता है डीबरिंग मस्ट, एज राउंडिंग मस्ट एंड सरफेस फिनिश वैल्यू RA वैल्यू दिस। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि क्लाइंट धीरे धीरे सीख रहा है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि उसका प्रिंसिपल उसको बोल रहा है मुझे ये चाहिए। तो ईवी सेक्टर को तो मैं ऐसा कहूंगा कि आने वाले दिनों में पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, हर घर में एक ईवी होगा। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अरविंद भाई। ईवी, खासकर 3 व्हीलर और 2 व्हीलर सेगमेंट में मैं अभी अपने गांव गया था, वहां देखा कि लोगों ने जो जिनके पास नौकरियां नहीं, और सीनियर सिटीजन भी काफी मेरे गांव में, शहर में हुआ करते थे, जो बेचारे बुढ़ापे में साइकिल रिक्शा खींचते थे। वो बहुत साल पहले की बात है, लेकिन अभी गया तो सबने, सीनियर सिटीजन और यंग लोगों ने 3 व्हीलर लेके अपना काम धंधा शुरू किया है। तो मैं भी इस मामले में बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। अरुण भाई, ये जो ब्रांड मेड इन इंडिया के आप एम्बेसडर हैं, जो जिसकी बात आप देश विदेश में करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर ऐसा है कि मेड इन इंडिया ब्रांड के पहले आने से पहले मैं बताऊंगा कि मेड इन इंडिया ब्रांड तब बनेगा जब हर बंदा कुछ ना कुछ काम करता होगा। तो जैसा आपने एक एग्जांपल दिया, काम गई थी, तो मैं भी जस्ट अभी अमृतसर से आया हूँ मैं, और वहाँ वो पैदल रिक्शा वाले जो बूढ़े लोग हैं वो आज बैटरी वाली व्हीकल चलाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बुढ़ापे में किसी न किसी को किसी का सहारा चाहिए। अगर वो साइकिल चलाता तो उसकी बेचारे की हालत क्या होती, क्योंकि आज नया जनरेशन कोई हेल्प नहीं करता है, बूढ़े लोगों का कोई हेल्प नहीं करता है। तो ये एटलीस्ट रिक्शा चला के डेली का 500 रुपया कमा रहा है, ताकि अपने नए जनरेशन, अपने बेटे के ऊपर तो बोझ नहीं है। और नीचे अगर हम जाएंगे, जो डेली, और सॉरी, मैं ऐड कर रहा हूँ कि इतनी एक्साइटिंग चीज, आप प्लीज कंटिन्यू करें। बट उनसे बात करता हूँ, जब जो बुढ़े लोग हैं वो उस उम्र में भी, 60-65 की उम्र में भी बच्चों की बात करते हैं कि मैं, आप क्यों, वो अपनी बात नहीं करते, कहते हैं मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, है हाँ ना, हाँ, मुझे अपनी पत्नी को मकान खरीद के देना है। वो तब भी परिवार की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। सही है सही है। और आज भी वो हेल्प करने की बात कर रहे हैं, 70-80 साल के बाद भी हेल्प करने की बात कर रहे हैं। तो यही मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा भारत देश का बूढ़ा भी आज जॉब कर रहा है। एक टाइम ऐसा था भाई कि फॉरेन में बूढ़े लोग काम करते थे सर्वाइवल के लिए, और हमारे यहाँ 60 साल के बाद कोई काम नहीं करता था, रिटायर लाइफ जीता था। ट्रेंड चेंज हो रहा है। भारत देश को अगर आर्थिक समृद्ध बनाना है, हर एक आदमी काम करना चाहिए, कोई रिटायर नहीं होना चाहिए। और तब जाके ये मेड इन इंडिया ब्रांड बनाने का पहला बिंदु ये है, हर बंदा काम करना चाहिए। तो हर बंदा जब काम करेगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, और वो काम सही तौर पे, सही रास्ते से अगर किया जाए, जिसमें रिजेक्शन कम हो, रिवर्क कम हो, क्लाइंट की नीड के हिसाब से काम हो, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस लेवल वर्ल्ड वाइड बढ़ेगा। और तब जाके लोग भरोसा करेंगे कि इंडिया का माल खरीदना चाहिए। तो ये चीज मैंने बहुत पहले सीख ली थी, जो आज लोगों की नीड है। तो मेरी इंडिया मकसद यही था कि मुझे भारत का नाम रोशन करना है, क्योंकि मैं जब भी यूरोप्लेज घूमता था, हैनोवर में से जाता था, तो हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, हमारी इतनी इज्जत नहीं थी। खाली हम जाते थे, देख के आते थे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे। तो वो लोग ऐसा ही समझते थे कि इंडिया से धंधा नहीं मिलना है। आज से अगर 20 साल पहले की अगर बात करोगे, तो यूरोप के साथ अगर कोई इंक्वायरी डालोगे तो आपको रिप्लाई भी नहीं देता था। आज ट्रेंड हो चुका है, यूरोपियन लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बस हम लोग रास्ते पे चल चुके हैं मेड इन इंडिया ब्रांड बनाने के लिए। और हमें बहुत एक अच्छा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ईंधन डाल दिया है कि करना ही है। तो आत्मनिर्भर भारत इनका जो
सेटअप है वो आत्मनिर्भर भारत आज छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को एक प्लेटफॉर्म देके उनको स्केल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये नई गवर्नमेंट आने के बाद इंडियन एंटरप्रेन्योर काफी खुश है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। सी कोई भी काम करेगा ना तो क्रिटिसिज्म तो होगा। मैं कुछ काम करूंगा तो शायद हो सकता है आपके लिए सही हो, किसी और के लिए सही ना हो, तो क्रिटिसिज्म तो मिलना है, बट ओवरऑल नेशनल बेनिफिट क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है जहां पे छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर को स्केल करने की कोशिश दी जाती है। और भारत सरकार आज की तारीख में सबको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा रही है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे सकता हूं। तो पहले मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को मिला था जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तब हम लोग ऐसा करते थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कि सर एसएमईज को अलाउ करो डिफेंस में सप्लाई करने के लिए। मैं पर्सनल मिला हूं फर्नांडिस साहब को और उन्होंने कमिट किया था कि हम एक वीक के अंदर एसएमईज को अलाउ करेंगे। तो जॉर्ज फर्नांडिस का उस वक्त का मिशन आज की तारीख में मोदी साहब ने देखो डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। आज कहीं किसी से बात कर रहा था हफ्ते पहले, तो वो मशीन गन प्राइवेट सेक्टर में बन रही है, बोइंग प्राइवेट सेक्टर में बनेगा, राइट। बोफोर्स तो यहाँ लोकल बन रही है, प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है। एरोस्पेस के पार्ट छोटे छोटे एसएमई उद्योगों के पास पहुंच चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है। तो कितने साल पहले की नींव हमने तो बात की थी, वो हमारी 20 साल पुरानी बात थी। हमको मौका मिल गया, फर्नांडिस साहब हमारी सरकार आ गई, अटल जी उस वक्त थे शायद वापस सेकंड टर्म्स में। और तब फर्नांडिस साहब ने बोला था कि अरविंद भाई कल एमएसएमई की हमारी मीटिंग है, एक हफ्ता मौका दो, हम एसएमई का 10% की जगह पर 20% कर देंगे और कुछ लिबरलाइजेशन कर देंगे ताकि एसएमई हमें सप्लाई करें। आज जी जी बिल्कुल। आज पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है सर, सबके पास काम है। जी जी तो एक सरकार भी स्टेबल सरकार चाहिए भारत को आर्थिक बनाने में। सिर्फ एंटरप्रेन्योर मेड इन इंडिया ब्रांड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ भारत सरकार काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ आज ही नहीं मुझे होगा। किसी ने एसएमएस भेजा था कि अच्छा लीडर चुनना चाहिए सिटीजन को, या सिटीजन अच्छा होना चाहिए लीडर चुनने के लिए। तो मैंने उनको बोला सिटीजन अच्छा होना चाहिए लीडर चुनने के लिए, क्योंकि लीडर आप अच्छा होगा लीडर तभी तो चुनोगे आप। तो आज देख रहे हो कि हमारे गुजरात में भी जो चुनाव हुआ है बीजेपी को बहुत बहुमति मिली है और हर जगह पे बीजेपी आज आ रही है। मैं स्पेसिफिकली ना बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, मुझे लोग काफी लोग कांग्रेसी भी कहते हैं, काफी लोग आप वाले भी कहते हैं। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और एज ए एंटरप्रेन्योर मैं इंडस्ट्रीज को लीड कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज ग्रो होना चाहिए और छोटी इंडस्ट्रीज रोजगारी ज्यादा देती है। आज एक बड़े सेक्टर को अगर 200 करोड़ फंडिंग करते हो और वहां 2000 एम्प्लॉय अगर हैं एक फैक्ट्री में, और मैं कहता हूं कि आप 200 फैक्ट्री को 2-2 करोड़ रुपया दो या 1-1 करोड़ रुपया दो, साहब हर इंडस्ट्री 50-50 लोग को रोजगारी देगी। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि रोजगारी जितनी बढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट हम जितना करेंगे, ऑटोमेशन इम्प्लीमेंटेशन हम जितना कराएंगे, उतना हमारा एक ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा मार्केट के अंदर और वो ट्रस्ट आपको मेड इन इंडिया ब्रांड करवाएगा। बेशक बेशक। अरुण भाई कितने, देखिए एक बात जैसे आपने शुरू में बोली थी कि अगर दिल से चाहो तो कायनात भी साथ देती है। इस बारे में जैसे प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर मिशन आत्मनिर्भर भारत योजना है, ये एक दिल दिल से निकला हुआ मिशन है जो हर भारतीय के दिल को छूता है, हर भारतीय के दिल से। और ये सही, जैसे कायनात भी साथ दे रही है, मतलब कि पूरी दुनिया में जैसी हवाएं चल रही हैं, अब लोग इंडिया को, भारत को प्रेफर करने लगे हैं बजाय किसी और बड़े देश के। तो दोनों चीजें साथ में काम कर रही हैं, जैसे आपने कहा कि दिल से चाहो। और ये बातचीत हमारी भी बिल्कुल दिल से हुई है। वन ऑफ द बेस्ट टॉक्स अरुण भाई इस कॉन्फ्रेंस की। एक ऑडियंस का क्वेश्चन आया है, आप उसको करें एड्रेस, और उसके बाद देखिए आपका वक्त भी बहुत ज्यादा ले लिया, 1 घंटे के आसपास हो रहा है। ऑडियंस मेंबर ये पूछ रहे हैं कि एक मिनट, हाँ, राहुल सिंह पूछ रहे हैं कि एक मंत्र बताएं यंग फाउंडर्स के लिए, के सक्सेस का, के लिए, सफलता के लिए एक मंत्र बताएं।
स्पॉन्टेनियस तो क्या दूं मैं लेकिन इतना कह सकता हूँ यंग फाउंडर के लिए। और देखो, यंग एंटरप्रेन्योर, तो पहली बात, एंटरप्रेन्योर आदमी बनने की कोशिश करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर एक डिसीज है, एक रोग है। जिसके दिमाग में, जिसके जहन में आ गया ना मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये एक रोग है। तो पहले वो डिसाइड कर ले कि वाकई में उसको एंटरप्रेन्योर बनना है। और अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये रोग को आप ले लो, और उसका सॉल्यूशन यही है, अगर एक लाइन में मंत्र चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावरफुल रखो। ऑब्जर्वेशन से आपको क्लैरिटी और विजन दोनों मिलता है, ट्रेंड क्या चल रहा है, और ट्रेंड के साथ अगर मुझे मैच होना है तो मैं आज जो पोजीशन में हूं उस पोजीशन में मैं क्या कर सकता हूं, और उसको कितना स्ट्रेच कर सकता हूं थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट होने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसका एक स्ट्रेचिंग मैक्सिमम लेवल तक का होगा, तो वो यंग फाउंडर, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेचिंग अगर लगता है कि ज्यादा करने से टूट जाएगा, तो थोड़ा एक बार उसको थिंकिंग प्रोसेस में डालना कि मैं उसको वापस कैसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। हम एक्सरसाइज करने भी जाते हैं जिम के अंदर, तो पहले ही दिन से वेट लिफ्टिंग थोड़ी करवाते हैं, स्ट्रेचिंग ही करवाते हैं बस। तो स्ट्रेचिंग का कैपेबिलिटी एक ले लो और ऑब्जर्वेशन पावरफुल कर लो, आप सफल हो गए होंगे। वाह, क्या बात है। ऑब्जर्वेशन और स्ट्रेचिंग, दो चीजें देखिए हमारे साहित्य और कल्चर में भी है। ऑब्जर्वेशन जो विपश्यना या ध्यान, ध्यान की बात, और योग। वाह अरुण भाई, देखिए आप नई बात भी बता रहे हैं और हमारी प्राचीन सभ्यता की बात भी आप बता रहे हैं। कितनी बड़ी, देखिए 1 घंटे में आपने संदेश भी दिया, ब्रांड इंडिया को भी आपने बताया कैसे हम लोग देश विदेश में रोशन करें, और साथ में शीट मेटल इंडस्ट्री के बारे में भी आपने फ्यूचर पोटेंशियल और प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बताया। अरुण भाई, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट टॉक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। हमारे ये कॉन्फ्रेंस में और भी काफी दिन है, हमें उम्मीद रहेगा कि आप हमारे साथ रहेंगे और दर्शक भी हमारे साथ रहेंगे। मैं आनंद भाई आपको जाते जाते भी कहूंगा कि आप लोग जो ये प्रयास कर रहे हो शीट मेटल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। और आने वाला कल शीट मेटल फैब्रिकेशन का ही है। मैं अगर कैलकुलेशन करता हूं तो 2030 तक 300 मिलियन टन शीट मेटल फैब्रिकेशन इंडिया में यूज होने वाला है, शायद उससे ज्यादा। तो स्कोप बहुत है इंडियन एंटरप्रेन्योर के पास। आप जो मिशन लेके खड़े हुए हैं कि छोटी फैक्ट्रीज, छोटे एसएमईज, छोटे उद्यमीज को आपके पत्रकारिता के माध्यम से आप उन लोगों को ऊपर लेके जा रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, इसलिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बधाई दूंगा। ये मिशन में आगे चलाते रहो, और बहुत सारा आप जो कार्य कर रहे हो वो सराहनीय है, और वो एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन के निकलेगा, बिल्कुल लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अरुण भाई। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू।